Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis and thanks for your support which I am getting from the last video and it was like an overwhelming support. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको ये वीडियो अच्छी लगी so it's my pleasure and I am getting a very good comments and likes so it's matter a lot for me first of all. And today we are going to have another mock test that is it is all about special ability. Space related क्या होता है 2D 3D like how do you open the K like cube and everything we will going to solve it. So for this test I would like to thank you Umang Kumar. Actually he sent me a message on the Instagram and he supported me and he gave me this test. So he was saying sir if you need so for it will be helpful for the other students. So I would like to thank you again and so let's start. If you want to get the PDF of this lecture, you can also get this PDF from the from the Telegram, and the Telegram name is ArcGenesis. You just search out about this thing, and the channel name it will be available in the comment section. और वहाँ पर उसको डाल दूंगा. बाकी if you want to follow Instagram, so you can also follow our Instagram channel page. So it is all about like NATA related information or it will related for the architecture, some codes, some architecture information. So आपको अगर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं. आई विल ट्राई कि जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उसको सॉल्व करूँ. सो अभी टाइम काफ़ी कम है हमारे पास सो लेट्स फोकस. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 45 क्वेश्चंस. सो 1 से लेके 25 क्वेश्चन जो हैं ये इसी पर आएंगे. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू. एक्चुअली यहाँ पर गलती से लिखा गया सो इट इज़ अ ग्रुप टू. आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है द शेप्स सॉरी द राइट आंसर इज ऑलरेडी रिटन. So again, so what they are asking the shapes in group 1 and group 2 are identical. कहीं ना कहीं से identical हैं जो इस ग्रुप में है और इस ग्रुप में है. Although some of them may be rotated और कुछ क्या है rotate हो सकती हैं. Which shape in group 2 correspond to the shape 1? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इमेज है दैट इज वन का जो है जो डायग्राम है ये किससे रिलेटेड है. ये कहाँ आपको लगता है कि कौन सा हो सकता है. सो टुडे आपको करना क्या है अभी के लिए पॉज दिस वीडियो और अभी आपको बताने हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा. सो यू हैव टू जस्ट मेक इट आउट लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज आपको बताना है ये आइडेंटिकल कौन सा है. सो इट इज लाइक this is so you will say 1 का option n है like this. So pause this video for the you will take only 2 minutes. I am giving the 2 minutes और 2 मिनट के बाद आप इनको 1 से लेकर 5 बताइए. नाउ योर नेक्स्ट टास्क इज कि m जो इट इज लुक लाइक दिस शेप ये कहाँ पर मैच हो रही है. सो वीडियो पॉज कीजिए और उसको 5 सॉल्व कीजिए देन विल डिस्कस द 5. आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर कर पांचों के पांचों इसका आंसर दिख लिया होगा. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट का n yes it is true. m का है q yes ये रोटेटेड है क्लियर. सो दिस पार्ट 3 का t so you will get this thing. It is f. It is mirror of this thing. So they have this mirror over 128-degree rotated. And this part 5 is so again question number 6, 7, 8, 9. Pause this video and try to solve it. And on the backdrop, I am also doing this. So question number 6 go like this. It can be yes H 7 8 what it is 9
So the right option will be. Now focus on question number 11 to 15. फर्स्ट यू ट्राई योर ऑन, और ये चीज़ मैटर करती है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर जहाँ पर टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है. यू विल नॉट हैव द लग्जरी कि आप आराम सोच सकते हैं, आपको बहुत जल्दी सर्च करना है. सो 25 और यहाँ पर 25 राइट में. सो यू हैव टू कम अप, यू हैव टू फाइंड एज अर्ली एज पॉसिबल. सो सिंपल थिंग 11. Again, this is answer key. Question number, now you have to focus on question number 16 to 20. So question number 16, 17, it is very easy. 18, no, actually, yes. Now you have to check it very easily. For example, don't do this thing. यहाँ पर और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फर्क है, और अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आई विल शो यू सम आंसर की. सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20, हियर यू कैन सी 18 का राइट आंसर है आर. वाई? क्योंकि आप इसको रोटेट करेंगे तो ये, इफ़ यू रोटेट इट लाइक आपने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल कम अप लाइक दिस. और आप इसको ये देखते हैं तो आपको रोटेट करना है, अगेन इसको 180 रोटेट करेंगे तो आपको ये वाला 90 डिग्री रोटेट करेंगे, सो यू विल कम अप विद दिस. सो कभी कभी सिमिलर इमेज होती हैं जो देखने में काफ़ी डिफ्रेंशिएट नहीं देख पकड़ पाते हैं, आपको उसका ध्यान रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, ये आप खुद कर लेंगे. आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द आंसर की, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसा काम करेंगे. अभी वैसे क्योंकि व्हाट आई फील कि देर आर सम स्टूडेंट जिनको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ उसको बीच में दे विल फील कि इसका सही है नहीं. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लोग कमेंट करते हैं. इट एक्चुअली शोज कि आप कितने इंटरेक्टिव होते हैं इन चीज़ों के लिए. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, विच फिगर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट. आपको ये इमेज दी गई है, आपको बताना है कि विच इमेज इज द आइडेंटिकल टू इट, इन विच इट इज लाइक एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सो आपको जल्दी करना है. इट कैन बी रोटेटेड और इट कैन बी. सो pause this video, try to solve it, and now I'm going to solve it. So here it is. No, it can't be the option. इसको identical to, how can be two things? It is like, okay, black content, again wrong. So now you go on this option, go on this option, go on, come to this. Yes, right. Option number C will be the right option. So what they have did, इसको पूरा रोटेट कर दिया है, इसका मिरर इमेज अपना बना दिया है. सो अगर आप उसको मिरर बनाएंगे सो इट विल कम अप लाइक दिस. सो दिस ब्लैक इज हेयर, इज दिस हेयर, नॉट मिरर एक्चुअली, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया है. तो जो ये वाला पार्ट है ये ऊपर पहुंच जाएगा, जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये भी रहेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे पहुंच जाएगा. अगेन जो ये ऊपर है ये नीचे आएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये बीच में है, और ये. सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर सी.
सेम चीज क्वेश्चन नंबर 27. So आइडेंटिकल आपको क्या करना है, इसको आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री. इफ़ यू रोटेटेड 90 डिग्री तो ये लाइन है ये इधर पहुंच जाएगी. यस, सो ये और जो वाइट ब्लॉक है इट विल बी हेयर एंड दिस पार्ट विल बी लाइक दिस. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. सेम चीज आपको बतानी है. So solve it. If you rotate it this line, this. ऑप्शन नहीं विल बी द राइट ऑप्शन. फर्स्ट चेक कि बाकी ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं कभी कभी. नो, क्योंकि यहाँ पर दो इधर हैं बट इन रियलिटी यू विल हैव ऑन द सेम लाइन. आप इसको रोटेट भी करेंगे तो एक लाइन में आएंगे. तो ऑप्शन 2 इसलिए गलत है, ऑप्शन 3 तो अपोजिट हो जाते हैं, ये गलत हैं, और ऑप्शन 4 नो. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is for you. Solve it and write down in comment section. So question number 29, I am not going to provide the answer key. Question number 30. So if you rotate it, it's a black one. ये तो सेम ही है बिल्कुल. ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन, राइट, बिल्कुल एज इट इज सेम है. इनमें कहाँ पर गलती है, ये है, ये यहाँ पर उल्टा आ गया है. नो, इट विल नॉट बी लाइक दिस. बट यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि सर अगर रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर तो फिर तो ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक वाला है, इधर आ जाएगा ब्लैक. यस, इट इज़ ट्रू. ये देखो इसके अपोजिट हैं, बट हेयर यू कैन सी ये इधर है और ये इधर की तरफ, दोनों की तरफ कैसे आ सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक ऊपर जाता है इधर की तरफ, अपोजिट है. तो यस, इट इज रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. विच ग्रुप ऑफ शेप्स कैन बी असेंबल्ड टू मेक द शेप शॉन. तो आपको बताना है कि इसमें से जो आपकी इमेज है इसको बनाने के लिए कौन कौन से ब्लॉक्स जरूरत होंगे, मतलब विच ग्रुप is showing the right option. For example, can you make by this 3 block to this thing? So इसका बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. इफ सपोज इफ आई वॉट लाइक दिस, सो अगर मैं इसको यहाँ पर एक पार्ट ले लेता हूँ तो दिस पार्ट विल कम लाइक दिस. देयर कांट बी एनी ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता है, कैसे बनाओगे इसको. सो ऑप्शन नंबर 1 बी इजीली एलिमिनेटेड. कैन वी डू दिस थिंग? ऑप्शन नंबर 2. So like this, so I can make it, so this figure is this, and if I make like this, so this point, this thing, so here it will not be easy for, no, काफी ज्यादा. So option 2 can't be the right option. Can the option number 3 will be the right option? Yes, it is true, it can be, it is the right actually. Why? You just make it like, just make it so this point is here and you divide it again, this and this. Very easy. So right option will be the option number C. Let's check option number D. Can we make it? So let's do this thing. ये आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इतना होगा नहीं होगा. So if it is like this, so how can you make 2 block and you can fill this whole thing? No, it is not possible. So right option will be the option number 31. And one more thing. In generally, I ask around 2 or 3 questions per mock test.
सो आप जब भी देख रहे हैं डोंट वेट कि आप वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट करेंगे, इससे क्या होता है कि आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए और उसी टाइम पर आप कमेंट कीजिए। यू विल इफ यू कमेंट 2 3 4 टाइम्स आई विल गिव यू ऑल द रिप्लाईज। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया है। सो इट्स फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, लेट्स चेक इट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल नॉट, क्योंकि इतना ही है तो ये भी नहीं हो सकता है। सो आइदर ऑप्शन बी और आइदर डी इज द राइट ऑप्शन। सो फर्स्ट चेक इट। सो लेट्स मेक इट। इफ आई no, it is not okay. Can I make it? This block will be like this, and this part this, sorry, this part and this part. Yes, it is will be like this. So this is this and this is this and this is this. यहाँ पर ये स्क्वायर को आप कहीं पर भी फिट नहीं कर पाएंगे। So 32 right option will be the option number B. क्वेश्चन नंबर 33, आपको वही सेम चीज बतानी है। Can you make it? Let's try it. So this point is this. अगर आपने ये वाला पार्ट यहाँ बना भी लेते हैं तो ये पार्ट रह जाएगा। नो, फर्स्ट कांट बी द राइट ऑप्शन। कैन बी ट्राई द ऑप्शन नंबर बी। ये यस यहाँ पर आता है और यू जस्ट मेक इट। यस इट इज ट्रू। और ये वाला पार्ट आया यहाँ पर और ये यहाँ पर। सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी। कुछ और भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स ट्राई ऑप्शन नंबर 3। सो दिस पॉइंट इज दिस अगेन। So this line triangle is this and this triangle is this, or maybe you can make it like, but again ये पूरा नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी बड़ा है तो ये वैसे भी छोटा है और ये बड़ा है, so it cannot be the right option. So 33 the right option will be the option number B. 34, let's make it। So this, if I make this triangle, no, it's not possible। Can I extend it? जिसके अंदर ये ट्रायंगल ये आ सकता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। यस, और this or this like this। So this point is here, this is this, this is this, and this is this, this is this, but here no, it is not possible। यहाँ पर कैसे रेस्ट करेंगे आप, नहीं हो पाएगा। सो 34 का पहला तो नहीं हो सकता है। ट्राई क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। सो try it like this, like this, like this। Okay, so here, it is gone, it's gone, here it's gone। How will we adjust this part? If it is looking like this, for example, let's do it। So ये पार्ट यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया है। Can we make it like this? No, again first adjust it। So ये कहीं पर भी आएगा तो यहाँ पर ही आएगा ये। So it is like this। So this line is, this triangle is here। So now we left it with option this। Okay, true, done। So how will you do? Just make it। So this is here, this is here, and the biggest triangle will be, so the option number B will be the right option। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, इट कैन बी रॉन्ग, तो आप देख सकते हैं, बट द अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इट्स फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 35 is also for you। So try to solve it।
I know it is quite difficult, but I want from your side just write down the comment section, क्योंकि ऐसा होता है कि this type of questions you need direct interaction, तो काफ़ी मुश्किल होता है समझाने के लिए just in the words कि if I make it if someone asks sir इसका आंसर ये होगा या क्या होगा, so it is going to very difficult. So first you comment it, if I found that काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, so मैं नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस इट. Question number 36. Which pattern can be folded to make the cube shown? There was a student, I am not remembering that name, and he was saying, sir कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मुझे थोड़ा नोट रहता है, सो जस्ट सो ट्राई टू सॉल्व इट. देखो बहुत सिंपल होते हैं, आपको सिंपल है कि ये क्यूब बनाना है एंड यू हैव टू फाइंड कि अगर क्यूब आता है इसको आप ओपन कर देंगे सो कैसा लगेगा देखने में. सो इट इज़ वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल जस्ट चेक द क्वेश्चन नंबर 36. यहाँ पर देखते हैं. देखो ये आपस में क्या है, आप उसको फाड़ नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट टीयर इट अप, राइट. तो आप उसको फोल्ड कर सकते हैं. तो ये दो पॉइंट जो हैं आपके ये आमने सामने आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड कर दिया. इट इज ट्रू. जो ये वाला पार्ट होगा ये उसके पीछे चला जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो इस पेज को पूरा घुमा दिया हो. इट इज लाइक दे आर जस्ट मेकिंग लाइक दिस. इफ आई रोटेट इट तो वन ब्लॉक this will be like here, second will be like this, and third and fourth. So it is looking like this. Now you try to solve it. और जो ये वाला पार्ट आएगा, इफ आई रोटेट इट तो ये पूरा का पूरा घूम कर कुछ इस तरह का आ जाएगा. ट्रू. नाउ यू ट्राई टू सॉल्व इट. कितना आसान है, कितना इजी है. जो ये वाला देखो ये इसको डायरेक्टली असेंबल हो रहा है ये वाला दिस पॉइंट, ये इसको रोटेट कैसा आएगा, अगर मैं इसको इस लाइन से रोटेट करता हूँ, सो फर्स्ट दिस लाइन विल बी लाइक दिस. ये उसके बाद जो क्यूब बनेगा मेरा, जो ये वाली लाइन आएगी ये कुछ इस तरह से आएगी. जो ये वाला पॉइंट जो ये वाला है इसको मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया, सो ये कुछ इस तरह से देखने को लगेगा. यही तो है. बस आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है 180 डिग्री पर, सो आपको समझ में आ जाएगा. वाई कांट बी दी ऑप्शन बी और सी और डी द राइट, क्योंकि चेक कर लेते हैं. देखो ये तो वैसे ही उल्टा आ गया ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं आपस में, ये अलग हट जाता है. ये सब चीज़ें हैं क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं फोल्ड करेंगे ना, तो आप तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इट कांट बी द राइट ऑप्शन. क्या ये सही हो सकता है? इट कैन बी, लेकिन इसको गलती है कहाँ पर, पता कैसे चलेगा, इसको फिर से रोटेट करना पड़ेगा आपको. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन. इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अगेन 37 करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है. अगर आप इस वाले पार्ट को लेते हैं तो ये राइट में आ गया है, सो ये राइट में आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, ये ब्लैंक आना चाहिए. तो थर्ड ये वाला कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया दिस ऑप्शन. सो नाउ अगर आप इसको लेते हैं और आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं इस वाले पार्ट में, तो ये यस इट इज़ अ ट्रू. ये सीधा ऑप्शन आ रहा है, इसको रोटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. क्या है, आपने कैसे लिया, आपने ये देखो ये वाला ब्लॉक लिया, सो आपका जो फिगर आया है कुछ इस तरह का आया है दिस लाइन. उसके बाद आपने इसको रोटेट कर दिया, इधर फोल्ड कर दिया, ये इसके तो ये कुछ ये वाले जो फेस आया है, ये जो वाला फेस आ गया है. नाउ ये वाला आपने क्या करा, ऊपर रोटेट किया, सो ये विल बी, ये तो है. तो ऑप्शन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन विल बी द बी, विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व इट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 180 डिग्री पर, तो क्या निकल कर आएगा, ये पूरी लाइन जाएगी ऊपर, और जो ये वाला पार्ट है कुछ इस तरह से आ जाएगा. दैट इज ये आएगा इस तरह से, और जो लाइन आएगी कुछ इस तरह से आएगी, ये वाला. उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन, तो जो रोटेट होगा तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आ जाएगा. आई थिंक आप समझ पा रहे हैं इसको मैंने 180 कैसे रोटेट किया है. तो ये जो 180 रोटेट करने के बाद जो ये वाला लाइन होगी यहाँ पहुँच जाएगी, जो ये वाला लाइन होगा इसका यही रहेगा, और जो ये वाला वाइट वाला पार्ट है ये कुछ इस तरह से आएगा. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन. कैसे आप उसको लगा सकते हैं, देखो जो ये वाला है, सो
आई जस्ट मेक इट द क्यूब। यहाँ पर मैंने इसको इस फोल्ड किया। उसके बाद ये वाली लाइन इसके पीछे आएगी, दिस विल बी दी दिस लाइन, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, ये पूरा का पूरा खाली स्पेस आएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन आएगी इसको फिर से फोल्ड करेंगे इसी की तरफ, तो आपको ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी, सी और डी आप ट्राई कीजिए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। एंड आई एम ऑल्सो एडमिटेड कि कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी तरफ से भी, कि कुछ मैंने एक दो को गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया है, या फिर ऑप्शन में वो राइट ऑप्शन नहीं है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, आई विल ट्राई कि इन फ्यूचर ना हो। लेकिन अगर आप देते हैं तो आई विल चेक उन क्वेश्चन को दोबारा कंपाइल एक अलग से पीपीटी बनाकर वी कैन डिस्कस इट अगेन। So right option will be the question number 1. Question number 39. Now it's for your homework. It is starting के 5 क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बच्चे से ही हैं, so you will like 21, 23, 24, 25, 25 बहुत इजीली हो जाएंगे। So we have just given, I have given you 2 questions more. तो मुझे नंबर याद नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक बार जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप एक बार उसको खोलकर तभी चेक कर लीजिए। 39 का नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। द ड्राइंग शोज अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर का शीट है, विच हैज़ बीन फोल्डेड, उसको फोल्ड किया गया है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल पेपर था और पेपर फोल्ड कर इसको आपने आधा फोल्ड किया, इधर की तरफ फोल्ड कर दिया और आपने लास्ट में जाकर उस पर पंच कर दिया है। द डैश लाइन इंडिकेट द होल शीट, ये पूरी है। इज ड्राइंग रिप्रेजेंट अ सिंगल फोल्ड। द ब्लैक स्क्वायर शोज द वेयर होल वॉज पंचर्ड, और आपने यहाँ पर एक होल कर दिया। वेयर डू द होल्स अपीयर व्हेन द शीट इज अनफोल्ड। तो कुछ नहीं है, मतलब तो कुछ सिंपल तरीके से बताया गया है। आपके पास एक पेपर था, दिस पेपर वॉज देयर, आपने क्या किया, उसको बीच में से यहाँ से फोल्ड कर दिया है, दैट इज यहाँ पर, और लास्ट में जाकर आपने पंच कर दिया है। तो ये कौन कौन से जो कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं इन चीज़ों के लिए, कौन कौन सीरीज में जो कॉलम दिया गया है इसके हिसाब से कहाँ पर आएगा बताना है। वेरी सिंपल, देखो यहाँ 3 ऊपर हैं और 3 नीचे की तरफ होंगे, राइट, यही तो बनेगा ना। यहाँ पर 6 हैं तो ये बीच में किया गया है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। तो डी के 2 पर हुआ है 2D, सो 2C नहीं, ये 2D में आएगा 2D। सो अगेन वेरी इजी, तो आप देख सकते हैं इसको, वैसे भी आगे भी चेक कर लेते हैं। आपने इसको खोला है तो ये क्या बना है 2D, इसको जब खोलेंगे तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये बनेगा 3, 4, 5 और ये डी पर बनेगा, तो 2D एंड 5D। क्लियर, सो वेरी इजी, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को समझ करने से पहले। राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। सो अगेन ये पेपर है, आपने इसको पहले हाफ लिया, इसको पहले फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद आपने फिर ये वाला फोल्ड करने के बाद यू विल कम, तो अपने यहाँ से इसको फिर से फोल्ड कर दिया, सो ये आ गया, उसके बाद आपने पंच कर दिया। तो वेरी इजी, इट इज़ ए, बी, सी एंड डी, और अगेन ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है 2B के ऊपर, इट इज, आई सपोज इट इज, I think it is B. It is 1. It is 2 and it is 3. Right. So it is 1. So it will become 1B. Again, जब उसको आप उल्टा खोलेंगे इधर की तरफ से, so you will, when you open it, so it will lie here around 6B. 6B. It is just a second, just a second. यहाँ पर कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा है. So it is 1 and it is B. Yes, it is true. So it will become 6B. उसके बाद ये पूरा यहाँ पर बनेगा व्हेन यू आर ओपन इट, लाइक अगर आपने अभी तक कौन सा खोला है, नाउ यू दिस टाइम जस्ट ओपन इट, तो ये वाला हाफ पार्ट है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गई हैं 1B एंड 6B। उसके बाद आप इसको उधर से खोलेंगे तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, दैट इज ये सी लाइन आ गई है और उसके अपोजिट सी होगा, सो दैट इज 1C एंड 6C। सो 1B, 1B एंड सॉरी 1B
राइट डाउन 1B एंड 1C, 6B एंड 6C, देख लीजिए 1B 2C, 1B 1C, 6B 6C. So correct option will be the option number D. Clear? Question number 42. कैसे क्या है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. देखो ये पार्ट इतना, दिस यू जस्ट फोल्डेड हेयर और आपने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया, तो आपका पार्ट बन के आया ये वाला. उसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ से रोटेट किया है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया. उसके बाद यू पंच इट हेयर लाइक दिस रीजन. तो आपको देखना पड़ेगा ये कौन से नंबर पर आया है. सो इफ यू सी 1 2 3 again 4 5 6, so it will be 3 and A B C D. So 3A will be this line. When you open it, तो ये ओपन होने के बाद ये जाएगा करीब 1C के ऊपर, 1C. उसके बाद sorry 1C, no 1C no, it will become 3 is here, so just make this 1 2 3 4 5 6. So if it is 3A, when you open it, it will come down to 3 1A, एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर आएगा, और जो ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी हुआ है पंच, तो ये यहाँ पर कहीं जगह पड़ेगा. इट विल बी 6 एंड D, 6D. थ्री ए 2A, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, 3 जगह होगा तो वैसे भी लिमिट हो जाता है, बिकॉज 3 जगह कहाँ कहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर कहीं होगा. सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर A. Last 3 questions. This is a plan like officers Perez is in toss sent with City Hall to his right. Which direction is C facing? तो आपको यहाँ प्लान दिया गया है, ये नॉर्थ के बारे में बताया गया कि नॉर्थ कहाँ पर है, आपको बताना है कि उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी. नाउ यू सी, देखो ऑफिसर पेरेज इज इन टॉस सिटी, सो ये सिटी का नाम क्या है, टॉस सेंट विद सिटी हॉल टू हिज राइट. सो टॉस स्ट्रीट, ओ सॉरी स्ट्रीट यहाँ पर है, ओके, एंड सिटी हॉल विद सिटी हॉल टू हिज राइट. ओके, तो अगर इनका सिटी हॉल राइट में है, सो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो सिर्फ सिटी हॉल इज इन इज राइट, तो यहाँ पर है मैम, और इनका लेफ्ट हैंड ये वाला है, राइट हैंड ये वाला, राइट हैंड सिटी हॉल है, तो उनका फेस किस डायरेक्शन में है, विच डायरेक्शन इफ सी इज फेसिंग, तो यस इट इज फेसिंग ईस्ट. सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है क्वेश्चन. ये देखो यहाँ पर बोला है कि प्रेस जो है वो इज इन टॉस सेंट और टॉस स्ट्रीट, सो यहाँ पर टॉस स्ट्रीट कहाँ पर है, दिस इज अ टॉस स्ट्रीट विद सिटी हॉल टू हर राइट, तो यहाँ पर वो मैम खड़ी हुई हैं या खड़े हुए हैं, उनका राइट में सिटी हॉल है, तो लेफ्ट में उनका क्या होगा, एंग्लो अमेरिकन ऑयल कंपनी हेडक्वार्टर होगा, और आप सामने की तरफ इनका फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा. क्यों, क्योंकि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. 44 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट. She turns and walk to the junction with West Saint Street. West Street. Okay, she turns and walk to the junction with the West Street. Okay. She then turn right. Okay, फिर यहाँ से right लेती हैं and walk to the next junction before turning the left. Okay. Where is the location O in relation to her position? समझे आप क्वेश्चन क्या बोल रही हो.
उन्होंने बोला पहले मैम यहाँ पर खड़ी थी क्योंकि दस सी, तो सी टर्न्स यहाँ पर उन्होंने रोटेट करती हैं कि यहाँ पर देख रही थी पहले, फिर रोटेट करती हैं थोड़ा सा, एंड वॉक टू द जंक्शन विद द वेस्ट स्ट्रीट, तो यहाँ पर वो यहाँ पर पहुँचती हैं इस लोकेशन पर, एंड वॉक टू द नेक्स्ट जंक्शन बिफोर टर्निंग लेफ्ट एंड टर्न राइट, तो यहाँ से पहुँचने के बाद राइट लेती हैं, फिर इस जंक्शन पहुँचती हैं, एंड वॉक टू द नेक्स्ट जंक्शन बिफोर टर्निंग द लेफ्ट, लेफ्ट लेन से पहले यहाँ पहुँचती हैं दिस पॉइंट, वेयर इज लोकेशन ओ इन रिलेशन टू हर, तो ये लोकेशन कहाँ पर है, ये ईस्ट में है। सो 49 ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन विल बी द ईस्ट। So the last question for today is question number 45. It is for you. So I am giving you 4 questions. स्टार्टिंग के उन काउंट नहीं करना है, वो तो आप कर ही देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 45 और बीच में 2 क्वेश्चन आए थे, आप उनको भी सोल्व करेंगे और उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट पीपीटी। सो again, if you want to follow our Instagram channel, so you can also follow the arcgenesis.official. It is the ID of Instagram, and the lecture of this PDF you will get from the Telegram channel. So thanks for your video, and if you like, then I request you please comment और अपने फ्रेंड में साथ शेयर कीजिए जितना भी हो सकते हैं, whatever contribute you can do it। और देखते हैं आगे इन फ्यूचर हम क्या मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर देर इज़ अ डिमांड फ्रॉम फ्रॉम यू कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, स्केल, प्रोपोर्शन, इन पर वर्क किया जाए, या फिर आर्किटेक्चर के बारे में बात की जाए कि फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। सो लेट मी नो, अभी आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो कि जहाँ पर थ्योरी ऑफ डिज़ाइन या एलिमेंट्स लाइक स्केल, प्रोपोर्शन, हायरार्की, रिदम, ये बहुत ईजी होते हैं, उनको वी विल डिस्कस इट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।